کھلا ہوا بیگ رات کے آخری پہر پہ شہر کی روشنی دھند سی بنی ہوئی تھی اور گلیوں میں چہل قدمی کم ہوتی جا رہی تھی۔ بازاروں کی رونق مدھم پڑ چکی تھی، دکانوں کی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھ رہی تھیں اور صرف چند منطقی آوازیں کہیں دور سے آتی ٹیکسی کی ہارن، وہاں کسی کتے کی بھونک فضا میں گونج رہی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک چھوٹا سا پارک تھا جس کے کنارے ایک بینچ پر ایک بیگ پڑا ہوا تھا، سادہ سا نیلا کپڑے کا بیگ جس کے چھوٹے چھوٹے دھابے اس کے زمانے کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس بیگ کے اوپر ایک پتلا میم تھا، جیسے کسی نے جلدی میں اسے وہاں رکھ دیا ہو اور بھول گیا ہو۔ صبح ہوتے ہی پارک کے گرد چند لوگ آنا شروع ہوئے، ورزش کرنے والے نوجوان دوڑتے، بزرگ چہل قدمی کرتے اور بچوں کی ہنسی پارک کی تنہائی کو توڑ رہی تھی۔ ایک بزرگ جس کا نام احمد تھا، جب وہ روز کی طرح صبح کی ہوا لینے پہنچا تو اس نے وہ بیگ دیکھا۔ اس نے پہلے تو خیال کیا شاید کسی بچے نے کھیلتے کھیلتے چھوڑ دیا ہو، مگر جب بیگ کھولا تو اندر ایک کتاب، ایک چھوٹا پرس، کچھ ٹوٹے ہوئے قلم اور ایک مٹھی بھر نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ کو شناختی کارڈ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹی سی نوٹ بک جس پر خالات لکھا ہوا تھا۔ احمد نے بیگ اٹھایا، اس کے اندر رکھے سامان کو غور سے دیکھا اور سوچا کہ مالک کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس نے بیگ کو پارک کے کونے میں رکھ دیا تاکہ صبح کے وقت لوگ اسے دیکھ سکے۔ صبح کی سنہری دھوپ میں جب لوگ آتے گئے تو بیگ کی خبر دور دور تک پھیل۔ بچے لوگوں نے کہا یہ کسی مسافر کا بیگ ہوگا جو بس میں بھول گیا، کچھ نے کہا شاید یہ کسی طالب علم کا ہو جس نے امتحان کی تیاری کے لیے پارک میں بیٹھ کر مطالعہ کیا تھا اور پھر جلدی میں چلا گیا، مگر کسی کے پاس بھی اس کا ثبوت نہیں تھا۔ اسی پارک کے قریب ایک چھوٹی سی کپڑوں کی دکان تھی جس کا مالک نوجوان کشاد تھا۔ کشاد نے جب بیگ دیکھا تو اس کے اندر موجود کچھ نوٹوں پر نظر پڑی ہوئی۔ نوٹوں میں ایک خوبصورت خط جیسا کچھ تھا، فلسفے کے مختصر اقتباسات، زندگی کے چھوٹے چھوٹے محاورے اور ایک نام کی آہن نما لکیریں جن کے آخر میں ایک انگوٹھی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کشاد کو لگا کہ مالک شاید حساس اور اداس دل رکھنے والا شخص ہوگا جو اپنے جذبات کو نوٹ بک میں تحریر کرتا ہے۔ اس نے بیگ کو اپنے دکان کے اندر رکھ لیا اور سوچا کہ اگر کوئی مالک آئے تو وہ اسے دے دے گا۔ پھر ایک لڑکی سارا جو کہ ایک قامی کالج میں پڑھتی تھی، روزانہ پارک کے پاس سے گزرتی۔ اس نے بیگ کو دیکھا اور چونکہ وہ ادبی رسائی اور شاعری کی شوقین تھی، اس نے بیگ کے اندر رکھی ایک کتاب اٹھا کر پڑھنی شروع کر دی۔ وہ کتاب دراصل ایک سفرنامہ تھی، چھوٹے چھوٹے قصے سادہ جملوں میں تحریر کیے گئے، مگر ہر صفحے کے پیچھے ایک گہری بانش چھپی ہوئی تھی۔ سارا نے دیکھا کہ کتاب کے بعض حصے میں لکھنے والا شخص اپنے ماضی، اپنے خوابوں اور کچھ ایسے لمحوں کا ذکر کرتا تھا جو کسی نے کبھی نہیں سنائے ہوتے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص جس نے یہ نوٹ لکھے تھے شاید کسی اندرونی خلش سے گزر رہا ہے۔ ایک دن پارک میں ایک بچہ عاطف کھیلتے کھیلتے بیگ کے قریب آیا۔ اس نے بیگ کی ایک سری پٹی کھولی تو ایک چھوٹا سا کھلونا گاڑی باہر آ گئی، وہی گاڑی جسے اس نے بچپن میں کھونا پسند کیا تھا، اور اس کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ عاطف نے بیگ کو اپنے گھر تک لے جانے کا سوچا مگر پھر وہ رک گیا۔ اس نے سمجھا کہ بیگ کسی کا قیمتی سامان رکھتا ہے اور خود اپنے لیے نہیں لے سکتا۔ اس نے بیگ کے پاس ایک نوٹ چھوڑ دیا، جو بھی بیگ کا مالک ہے براہ کرم واپس لے گا، ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پارک کے سب لوگ اب بیگ کو محفوظ مان چکے تھے۔ پھر ایک دن ایک عورت آئی، نام تھا فرح۔ اس نے جب بیگ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تہ در تہ غم جھلکا۔ وہ گہرا سانس لے کر بیگ کے قریب آئی، بیگ کو ہاتھ لگایا اور فوراً پہچان گئی، یہ میرا بیگ ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی گرمی اور یکسوئی تھی جیسے وہ کئی برسوں کے بعد کسی پرانے دوست کو دوبارہ پا رہی ہو۔ وہ بیگ اس کی تھی، مگر اس کی کہانی محض ایک بھولی ہوئی چیز سے کہیں بڑھ کر تفرا نے بتانا شروع کیا۔ بیگ اس کا نہیں، صرف چین کا ایک حصہ تھا، اس کی زندگی کی ایک جھلک تھے۔ 1 سال پہلے جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شہر آئی تھی تو یہ بیگ، اس کے تمام خواب، کتابیں، کچھ یادداشتیں اور چند اہم کاغذات کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ خود ایک یونیورسٹی میں پڑھنے آئی تھی، دل میں بڑی امیدیں تھیں، مگر پھر زندگی نے اسے ایسے موڑ پر کھڑا کیا جہاں اسے اپنا راستہ بدلنا پڑا۔ اس نے شادی کی، بچے ہوئے، روزگار ملا، اور وہی بیگ گھر کے ایک کونے میں پڑا رہا۔ پھر ایک مشکل دن آیا، ایک جھنجھلاہٹ، ایک جھگڑا، اور بیگ کسی طرح گھر کے دروازے کے باہر رکھ کر بھولا گیا۔ فرح کی زندگی میں وہ وقت بھرے ہوئے زخم لے کر آیا تھا، ایک لاپتہ رشتہ، ایک ٹوٹا ہوا خواب اور دفن شدہ یادیں۔ جب وہ بیگ کھولی تو اسے اپنا وہی سفرنامہ ملا، اسی انگوٹھی کی تصویر والی نوٹ بک اور بعض خطوط جو اس نے کبھی کسی کو بھیجنے کی جرت نہیں کی تھی۔ جب اس نے باقی سامان
देखा तो उसकी आंखों से अश्क बहने लगे, खुशी के नहीं बल्कि इस एहसास से कि कुछ खो गया था मगर अब वापस आया है। फराह ने बताया कि इसने इस बैग में अपने दिल के वो हिस्से बंद कर रखे थे जिन्हें वो खुद भी कभी याद नहीं करना चाहती थे। वो कहते हैं, हम अक्सर अपनी जिंदगी के भूले हुए हिस्सों को एक कोठरी में बंद कर देते हैं ताकि रोजमर्रा की मसाकीन मसरूफियात हमें कमजोर ना लगाएं, मगर वो हिस्से जब बाहर आते हैं तो हमें याद दिलाते हैं कि हम भी मुकम्मल इंसान हैं। खुशियां, गम, तलाफी के मौके सब एक साथ जुड़े होते हैं। पाक के लोगों ने जब फराह की कहानी सुनी तो एक अजब किस्म की खामोश हमदर्दी ने जन्म लिया। कुशाद ने अपनी दुकान से एक तख्ती ली और बैग के पास लिख दिया, मलकियत बरकरार, मालिक सामने मौजूद है। सारा ने फराह से कहा कि अगर वो चाहे तो बैग में मौजूद नोटबुक की नकूल बना ले ताकि वो अपनी तहरीरों को महफूज रख सके। आतिफ ने दूसरों को बताया कि अगर बैग वापस आ गया है तो ये अल्लाह की रहमत है। अहमद ने कहा कि कभी कभी इंसान को अपनी चीजें खोकर जिंदगी की कदर महसूस होती है और कुछ वापस आकर यकीनी हो जाता है कि वो जो खोया था वो इतना भारी नहीं था जितना लग रहा था। फराह की आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर मुस्कुराहट भी। त्यास ने बैग उठाया, गहरी सांस ली और कहा, शुक्र है कि बैग मिला, मगर इससे बढ़कर शुक्र है कि अब सब ने मेरे बैग की हिफाजत की। इसके बकौल बैग तो वापस आ गया मगर उसके अंदर छपी कहानियां और यादें तो उसकी अपनी थीं। उन्हें अब वो किसी नए अंदाज में जीना चाहती थी। पार्क के लोगों ने फैसला किया कि बैग को न सिर्फ मालिक के हवाले किया जाए बल्कि एक दिन पार्क में एक छोटी सी महफिल भी रखी जाए जहां लोग अपनी कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि फराह का बैग सिर्फ एक तन्हा सामान नहीं था बल्कि किसी की जिंदगी का एक आईना था। चंद हफ्तों बाद पार्क में वाकई एक महफिल मुनक्किद हुई। लोग अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आए, कोई रिसाला, कोई आधी पड़ी किताब, कोई एक पुराना खत। फराह ने भी अपनी नोटबुक के कुछ इक्तबासात पढ़े। एक नौजवान ने अपनी वालिदा के नाम लिखा हुआ खत पढ़ा, एक बुजुर्ग ने अपनी जवानी की मेहनत की दास्तान सुनाई और एक छोटिए ने एक खिलौने के बारे में बताया जो उसके अबू ने बनाया था। हर कहानी के बाद तालियां बजीं। कुछ कहानियां लोगों के दिलों को छू गया तो कुछ ने आंखें नम कर दी। महफिल की आखिरी घड़ी में कुशाद ने कहा, हम सब ने जो कुछ खोया था, वक्त, लोग, ख्वाब, उन्हें शायद हम वापस ना पा सकें मगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहकर उन खोई हुई चीजों की कदर महसूस कर सकते हैं। इस वाकये के बाद पार्क का माहौल बदल गया। लोग न सिर्फ अपनी रोजमर्रा की बातें करने आए बल्कि एक दूसरे की जिंदगियों में दिलचस्पी लेने लगे। बैग एक बहाना बन गया था, एक छोटा सा बहाना जिसने खामोश लोगों को करीब किया था और एक तरह से एक छोटी सी कम्युनिटी को जन्म दिया था। फराह ने अपने बैग को घर में एक खास जगह पर रखा मगर अब इसके अंदर मौजूद नोटबुक की कॉपी कुशाद के पास थी ताकि जब भी वो चाहे लोगों के लिए वो इक्तबासात दुखा सके। सारा ने मखसूस दिनों पर पार्क में मुताला की छोटी नशिस्तें शुरू कर दी। आतिफ ने बच्चों के लिए खेल के सामान अतिया करना शुरू किया। अहमद ने बड़ी आसानी से पार्क की सफाई में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सब ने महसूस किया कि एक भूला हुआ बैग उनके लिए एक नए रिश्ते का आगाज बन गया है। ये कहानी हमें कुछ सादा मगर बुनियादी सबक देती है। सबसे पहले कि चीजें जो हम खो देते हैं सिर्फ मादी नहीं होती, वो अक्सर हमारी यादों, ख्वाबों और ताल्लुकात की शक्ल में भी होती। आवदेवसी के बेतवज्जोही का एक लम्हा किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है, खा वो बैग हो या कोई ताल्लुक। मगर इंसान की खूबी ये कि कम्युनिटी और मोहब्बत की ताकत से इस खोए हुए को दोबारा पाना, कम अज कम उसकी कदर जाना मुमकिन है। तीसरा सबक ये कि छोटी छोटी बातें जैसे किसी बैग का ख्याल रखना, किसी की तहरीर पढ़ना या किसी को आंखों में देखकर सुनना बड़ी तब्दीलियां पैदा कर सकती हैं। कई माह बाद जब बारिश का मौसम आया तो पार्क के दरख्तों की शाखें हरी भरी हो गईं और बैग की वो नवादरात अब न सिर्फ फराह के घर में बल्कि पार्क की एक छोटी सी अलमारी में रखी गई थी जहां लोग आकर उन्हें देखते, पढ़ते और अपनी जिंदगी के मुताल्लिक बातें करती। उनका रंग वक्त के साथ थोड़ा और रंगीन हो गया मगर उसकी कदर रोज बरोज बढ़ती। कच्चे लोग अब भी कहते थे कि ये महज एक बैग था, मगर जो इस बैग ने कर दिखाया इसने एक शहर के चंद लोगों के दिलों को जोड़ दिया, एक कम्युनिटी पैदा की और सबसे बढ़कर एक औरत को अपनी खुदी की याद दिला दी। जिंदगी अक्सर हमें ये सिखाती है कि जो चीजें हम भूल जाएं वो शायद हमें दोबारा मिल जाएं, मगर बदल कर नए मानी लेकर बेगला हुआ बैग अगर एक तरफ हमारा सामान वापस ला सकता है तो दूसरी तरफ वो हमें ये भी बता देता है कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों की कदर करनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए और कभी कभार अपनी कहानी दूसरों के साथ बांध कर जिंदगी को हल्का कर लेना चाहिए। आखिरी मंजर में फराह पार्क की बेंच पर बैठी हुई बैग को देखती
मगर अब वही बेग सिर्फ इसका नहीं रहो पाक का एक हिस्सा बन चुका तेल अगर बेग की कुमती चीजें देखते नोटिस लेते और अपने अंदर की सादगी तलाश करते फराह के चेहरे पर एक अनोखा हो जाता। ठीक है, इसके खोए हुए हिस्से वापस आ गए हैं, मगर सबसे अहम बात यह कि इसने ये भी पाया कि इसकी कहानी अब अकेली नहीं रही, वो इंसानों के बीच में है, एक छोटे से बेग के जरिए। और ये हकीकत इसके लिए काफी क्या कहानी एक सादा सी सूरत हाल से शुरू हुई, एक पार्क में पड़ा हुआ भूला हुआ बेग, मगर इख्तिताम एक बड़े सबक पर पहुंची कि हर चीज चाहे वो मादवी हो या जज्बाती, जब लोगों की निगहदाश्त और मोहब्बत से जड़ी हो तो वो सिर्फ किसी का ज़ाती मलकियत नहीं रहती, वो एक मुश्तरका कहानी बन जाती है जिसके जरिए हम एक दूसरे की जिंदगियों को बसाना और बेहतर बनाना सीखते हैं। उन्वान: भूला हुआ बेग। शाम का वक्त था, बाजार की रोशनी मध्यम हो चुकी थी और दुकानों के शीशे पर जड़ी हुई रोशनियों ने रास्ते को सुनहरी कर दिया था। हर तरफ आवाजें थीं, लोहे के दरवाजों पर ताले पड़ रहे थे, घरों की जानिब जाने वाले लोग एक दूसरे से अलविदा कह रहे थे और कहीं दूर से बच्चों की हंसी के टुकड़े हवा में बखर रहे थे। इस हुजूम के बीच एक सुनहरी रंग का बेग सड़क किनारे पड़ा था, जिसकी हालत ऐसी लगती थी जैसे वो बहुत अरसा से वहां पड़ा हुआ हो। थोड़ा फटा एक पता इसके टूटी रिकाबी में दाखिल हो चुका था और इस पर मिट्टी की पुतली सी तह लग चुकी थी। लोग इस बेग को देखते तो थे, मगर जोर से देखकर आगे चले जाते, जैसे किसी गैर मुताल्लिक शय की तरफ पलट कर देखना जरूरी ना हो। उनको नजरअंदाज करने वाले एक शख्स की आंखें अचानक रुक गईं। वो नौजवान लड़का था, नाम इसका एहसन था, उम्र 20 के करीब। वो अपने कपड़ों की जेब से सिगरेट निकाल कर जलाने लगा था, मगर जब उसकी नजर इस बेग पर पड़ी तो उसने सिगरेट फिर जेब में रख लिया। इसे अंदर से एक आहट सी महसूस हुई, जैसे बेग ने इसे बुलाया। हवास न करीब आया, झुका और बेग के करीब बैठ गया। बेग खोलने का इरादा इसके दिल में एक अजीब सी गरमाइश ले आया। इसने आहिस्तगी से जैब खोली। अंदर एक पुराना नोट पकड़ा हुआ था, चंद टूटे हुए पेंसिलें, एक खस्ता पिल की टापी की डिबिया और एक लिफाफा जिसके अंदर एक खत था। एहसन ने लिफाफा उठाया, इस पर कहीं कोई नाम नहीं था, मगर खत पर लिखी हुई एक सतर ने इसके दिल में ऐसा शोर भरा दिया जैसे किसी ने पुराने दुखों के दरवाजे खोल दिए हों। खत शुरू होता था: जो भी ये बेग मेरे लिए ढूंढे, बराए मेहरबानी ये पैगाम पढ़े, ये मेरा बेग है, मगर ये बेग मेरे साथ रहने वाली कहानी भी है। एहसन ने दिल में सोचा, कहानी, एक बेग की कहानी। मगर वो खत पढ़ते चला गया, क्योंकि अल्फाज में एक सच्चाई, एक मोहब्बत और एक कमी सी महसूस हो रही थी। खत लिखने वाली एक बूढ़ी औरत थी। इसने तहरीर में लिखा था कि ये बेग इसके बेटे का था, जो जंगल के रास्ते बहाकर किसी शहर गया था और वापस नहीं आया। बेग में इसके बेटे की चंद यादें थीं: एक छोटा सा चश्मा, एक खुरदरा रबर बंदा जिसे वो हर साथ ले जाता, और एक तस्वीर जिसमें बेटे की हंसी जिंदा थी। औरत ने लिखा कि वो हर रोज इसी रास्ते पर आती जहां इसने बेग आखिरी बार देखा था, और दुआ करती कि किसी दिन इसके बेटे की वाह उसी के निशानात मिले। मगर साल गुजरते गए और मोहल्ले के लोग भूतों की कहानियों की तरह इसके सवालात से तंग आ गए। वो मरता हुआ भाग गया होगा, कोई कहता शहरी जिंदगी में खो गया होगा, कोई और मशवरा देता, मगर वो बूढ़ी औरत अपनी उम्मीद नहीं छोड़ सका। उसने ये बेग शहर के बाजार में छोड़ दिया था। शायद किसी ने इसे उठाकर बेटे तक पहुंचा दिया, शायद वो बस चाहती थी कि इस बेग की कहानी किसी के कान तक पहुंचे। एहसन ने खत पढ़ना बंद किया और अपने अंदर एक तड़प महसूस की। इसने देखा कि इस बाजार में बहुत सी कहानियां बेनाम हैं, लोगों के बेग, कपड़े और चीजें जो एक वक्त में किसी के जीवन का महवर थीं और बाद में फजूल सी चीजों में बदल गईं। इस सोच ने एहसन को हल्का सा दिया। वो खड़ा हुआ बेग उठाया और दुकानों की सफ में चल पड़ा, जैसे किसी मंजिल की तरफ। मंजिल दरअसल इस घर का पता था जो इस खत में जिक्र था। एहसन ने फैसला किया कि वो इस बेग को किसी बूढ़ी औरत तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो बेग लेकर घर पहुंचा तो इसने महसूस किया कि बेग का वजन इससे ज्यादा है। शायद अंदर कुछ ऐसा था जो भीगी यादों की तरह इसका मुंतजिर था। एहसन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो छोटी सी लड़की सामने थी, आंखों में प्यास और हाथ में चादर लिपटी हुई। एहसन ने बेग दिखाया और पूछा, क्या आपकी मां है? लड़की ने सर हिलाकर अंदर जाने का इशारा किया। घर के अंदर पहुंचा तो बूढ़ी औरत रंगत में पीली पड़ी, मगर आंखों में ऐसी चमक थी जो जमाना भी मिटाने में नाकाम था। इसने एहसन के हाथों में बेग देखते ही चेहरा रोशन कर लिया।
اس کی انگلیاں لرز مگر وہ بیگ کو مضبوطی سے پکڑنے لگی جیسے بیگ میں اس کے بیٹے کی روح لگی ہو۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس کا بیٹا علی نام کا تھا، وہ ایک نہایت اچھا لڑکا تھا۔ گاؤں میں سب کی آنکھوں کا چمکدار ستارہ۔ کسی روز علی نے شہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کام کر کے گھر والوں کی مدد کر سکے۔ اس روز علی نے اپنا سنہری بیگ اٹھایا اور اپنے ماں کو وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آئے گا، مگر گزرے مہینوں میں کوئی نشان نہ ملا۔ عورت نے بیگ کو بازار میں چھوڑنے کی کوشش اس امید میں کی تھی کہ شاید کوئی راہگیر اسے اٹھا کر علی تک پہنچا دے، لیکن وہ بیگ نہ جانے کیسے بھٹک گیا اور اسی بازار کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ جب احسن نے اسے پایا، احسن نے پوچھا تو پھر علی کہاں گیا؟ عورت نے آہ بھر کر کہا یہی تو مجھے معلوم نہیں، شاید وہ کہیں اور بسا ہوا ہے، شاید اس کا مقدر ہمیں جدا کر گیا۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے کچھ قطروں نے گر کر فرش پر ہلکی چمک چھوڑ دی۔ احسن نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بھی کچھ گرم ہلچل اٹھ رہی ہے۔ اس بیگ میں صرف ایک شے نہیں، ایک ذمہ داری اس کے کندھوں پر رکھ دی تھی۔ اگلے دن احسن نے شہر کے اصل راستوں کا رخ کیا۔ وہ اس بیگ کو لے کر مختلف محلے گیا، لوگوں سے پوچھتا، بڑے گھروں کی دہلیزوں پر دستک کس نے کہا کہ انہوں نے ایک نوجوان دیکھا تھا جو اسی طرح کا بیگ لے کر نکل گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ ایک اور شہر کی بس میں دیکھا تھا، مگر کوئی بھی اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکا کہ وہی علی تھا۔ دن گزرتا گیا اور تلاش جاری رہی، ہر جگہ احسن کو ایک نئی کہانی ملتی۔ کسی کی ماں نے اپنے بیٹے کی تصویر دکھائی، کسی نے بتایا کہ شہر میں ایک نوجوان ڈاکو پکڑا گیا تھا جس نے اپنا بیگ کہاں گم کیا، مگر سب کہانیاں ادھوری رہ گئیں۔ احسن کی کوششیں محض تلاش نہیں رہ گئیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں چھپی امیدوں کو تازہ کرتی رہیں۔ وہ جب ایک محلے میں جاتا تو بچوں کو اپنے اسکول کے بارے میں بتاتا، بڑوں سے روزگار کی باتیں کرتا، اور جہاں کہیں بھی کھانا نہیں ہوتا وہاں 2 وقت کا کھانا بانٹ دیا کرتا۔ اس کا مقصد صرف علی کا بیگ واپس کرنا نہیں رہو، اپنی آنکھوں سے سماج کی وہ تصویر دیکھ رہا تھا جس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر رہنا سیکھ چکے تھے۔ وہ جان گیا کہ یادیں چاہے بیگ میں بند ہوں یا دل میں، انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں۔ ایک دن جب احسن کسی چھوٹے سے کیفے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا کہ ایک نوجوان میں پلاسٹک کے تھیلے کے ساتھ بیٹھا ہے جو عجیب طرح سے اس بیگ سے ملتا جلتا تھا۔ احسن فوراً اٹھا اور اس نوجوان کے پاس گیا۔ نوجوان تھکا ہوا مگر آنکھوں میں کوئی روشنی موجود تھے۔ احسن نے آہستگی سے پوچھا، کیا تم علی ہو؟ نوجوان نے سر اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک آشنا سی مسکان نمودار ہوئی، مگر پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ نہیں، میں علی نہیں، اس نے کہا، میرا نام شعیب ہے۔ شعیب نے بتایا کہ وہ بھی ایک شہر آئے ہوئے نوجوان ہیں جن کا مقصد بہتر روزگار تلاش کرنا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہی بیگ ایک بازار کے گارڈ نے بیچ دیا تھا جب وہ بے سہارا تھا، اور کچھ لوگوں نے اسے یہ بیگ دے دیا تھا۔ شعیب کے ہاتھ میں جو بیگ تھا وہ وہی نہیں تھا، مگر اس سے ملتی جلتی خصوصیات تھیں۔ یہ صورتحال احسن کے لیے ایک نئی الجھن تھی۔ بیگ شاید کہیں بہت سی ہاتھوں سے گزرا ہو اور لوگوں کے درمیان کہانیاں بانٹتا ہوا آتا گیا ہو۔ شعیب نے احسن کو ایک پتے کا ذکر کیا، ایک چھوٹا سا ٹھکانہ شہر کے شمالی حصے میں جہاں ہفتے کے آخر میں لوگ پرانے سامان بیچتے خریدتے۔ احسن نے فوراً وہاں کا رخ کیا۔ بازار میں پہنچ کر وہ مختلف دکانوں کی صفوں میں گھومتا رہا۔ ایک دکاندار نے جب بیگ دیکھا تو اس نے اچانک آنکھوں میں نرمی آ کر کہا، یہ بیگ یہ تو پچھلے سال ایک مسافر نے لیا تھا، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس بیگ کی داستان گلی کوچوں سے ٹکرانے لگی، ہر گوشے میں اپنی ایک کڑی اس زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک وکیل نے بتایا کہ اس نے ایک نامعلوم شخص کی مدد کی تھی جو بیگ لے کر گھوم رہا تھا۔ ایک استاد نے بتایا کہ وہ بیگ ایک اسکول کے باہر دیکھا گیا۔ اس طرح یہ معلوم ہوا کہ بیگ نے لوگوں کے دلوں میں امید کا ایک ٹوٹا ہوا چراغ روشن رکھا تھا، اور لوگ بے حساب کوششوں میں شریک ہو کر اس چراغ کو جلائے رکھتے تھے۔ تنہا تلاش کے دوران احسن نے سیکھا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک بیگ ہوتا ہے، ایک یاد، ایک امید، ایک چیز جو اسے کسی خاص لمحے سے جوڑے رکھتی ہے۔ کبھی یہ بیگ محبت کے نوٹوں سے بھرا ہوتا، کبھی ادھوری خواہشوں سے، اور کبھی صرف خوابوں سے۔ احسن نے محسوس کیا کہ بیگ کی اصل قیمت اشیاء میں نہیں بلکہ یادوں میں ہے۔ یہی خیال اسے واپس بوڑھی عورت کے گھر لے آیا۔ اس نے بیگ کو عورت کے سامنے رکھا اور کہا، میں نے پوری کوشش کی مگر علی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ بیگ نے بہت سے ہاتھ بدل لیے مگر آپ کی یادیں محفوظ رہیں۔ عورت نے بیگ کی گرفت میں آنکھیں بند کی اور کہا،
कामयाब होने या न होने से बढ़कर तुमने मेरी उम्मीद को जिंदा रखा है। इस दिन औरत ने एहसन को अपने घर में रहने की दावत दी। वो खुद कमज़ोर थी मगर उसने एहसन को एक उस्ताद की तरह समझा और उसको अपने पास रखने का फैसला का। एहसन भी ठहर शर की तेज़ रफ्तार जिंदगी में कहीं नेकी का रिश्ता इसके दिल में जड़ गया था। वो वहाँ रहने लगा, बूढ़ी औरत की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और बाजार में कभी कभार बेग की तलाश भी जारी रखता। मगर अब उसकी तलाश का मकसद सिर्फ अली तक पहुँचना नहीं रहा था। इसका मकसद लोगों के दिलों में उम्मीद बचाना था। साल गुजरता गया। एक दिन एक रिपोर्टर ने इस इलाके में एक वीडियो बनाई। इसमें एहसन ने बेग की कहानी और बूढ़ी माँ की मोहब्बत बयान की। वीडियो वायरल हुई और मंजर आम पर आने के बाद कई लोगों ने मदद की पेशकश की। एक शख्स ने कहा कि इसका एक दोस्त पिछले साल एक कोच में बैठा था जिसने एक बेग छोड़ा था इसके पास इसी तरह चश्मा था। दूसरी खातून ने बताया कि इसके मोहल्ले में एक नौजवान ने अली जैसा नाम लिया था जो इसी बेग की खुसूसियात रखता था। कमरों की ये लहर आने के बाद एहसन और बूढ़ी औरत के पास खतों पैगामात की सी बारिश होने लगी। लोग अपनी कहानियों और मुशाहदात को भेजते रहे। हर पैगाम में एक उम्मीद थी और हर उम्मीद ने इस छोटे से घर की दीवारों को गर्म कर दिया। चंद महीनों बाद एक पैगाम आया। शख्स जो एक कस्बे में रहता था ने लिखा कि इसने एक दिन एक नौजवान को देखा जिसके पास वही चश्मा और वही रबर बंदा था। इस नौजवान का चेहरा बदल गया था मगर जब वो बेग को खोला तो अंदर एक तस्वीर निकली जिसमें बूढ़ी औरत की तरह का चेहरा था। इसने फौरन एहसन को बताया और एहसन ने फौरन रवानगी का फैसला कौहाहे पहुंचकर उन्हें एक छोटा सा घर मिला और घर में मौजूद नौजवान ने जब बेग खोला तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। तस्वीर में वही चेहरा था, एक जवान औरत, मगर वो तस्वीर अली की नहीं थी बल्कि बूढ़ी औरत की जवानी की तस्वीर निकली। नौजवान ने बताया कि इसकी मां की वफात हो गई थी और वो अपने खानदान के साथ शहर गया था मगर वो नहीं जाना चाहता था कि इसके पीछे कौन बनेगा। इसने अपने हाथ में रखी तस्वीर को मोहब्बत से देखा और कहा, ये तस्वीर मुझे याद दिला देती है कि दुख के बावजूद उम्मीद बाकी रहती है। वो नौजवान दरअसल बूढ़ी औरत का पोता था जिसका नाम भी अली था मगर वो मुख्तलिफ कस्बे की एक शाख से ताल्लुक़ रखता था। ये दरियाफ्त सबके लिए हैरत अंगेज मगर खुशकुन थी। मालूम हुआ कि कई खानदान अपने बच्चों के नाम एक ही रखते हैं और बेग कभी कभार इस रब्त के साथ घूमता रहा। एहसन ने जब ये सारी कहानियां सुने तो उसका दिल भर आया। वो समझ गया कि बेग एक अलामत था, अपने अंदर लाखों यादें, लाखों उम्मीदें और ना जाने कितनी दुआएं रखी हुई थी। बूढ़ी औरत की सूरत में वो बेग वापस तो आया मगर अली की असल हकीकत शायद कभी पूरी ना हो। मगर इसने मुआशरे को जो सबक दिया वो कीमती था कि यादें चाहे कितनी भी भूली हुई लगें किसी दिल में जड़ी होती हैं और उन्हें जिंदा रखने की कोशिश इंसानियत का अजीम काम है। आखिर में एहसन ने वो बेग अपनी तसल्ली के तौर पर नहीं रखा बल्कि इसने इसे एक छोटे म्यूजियम में दे दिया जहां लोग अपनी कहानियां लगा कर जाती। इस म्यूजियम का नाम फूल यादों का घर रखा गया। वहां बैगों, नोटों, खतों और तस्वीर की एक छोटी सी गैलरी थी। हर आइटम के साथ एक छोटी सी कहानी लिखी होती। लोग आते पढ़ते और अपनी आंखों में मोहब्बत लेकर वापस जाते। वो बेग जिसे रोज बाजार की गर्द में लिपटा हुआ पाया गया था अब हजारों इंसानों की कहानी सुनाता था और लोगों को जोड़ता था। एहसन ने महसूस किया कि वो बेग शायद कभी अली तक ना पहुंचा हो मगर उसने बहुतों के दिलों तक अपनी राह निकाली थी। कहानी का इख्तिताम हमेशा ऐसे ही नहीं होता कि तमाम बंधें खिल जाए। बाज़ औक़ात इख्तिताम एक नए आगाज़ की शक्ल में होता है। भूला हुआ बेग इसी तरह का आगाज़ था। एक बेग जिसे शहर ने भुला दिया था मगर इंसानियत ने इसे याद रखा। इस बेग ने सिखाया कि कोई चीज़ सचमुच भूली नहीं जाती, बस कभी वो किसी के पास आकर मरहम बन जाती है। और अगर हम हर भूली हुई शय को नज़रअंदाज न करें, अगर हम एक दूसरे के दुखों और उम्मीदों को संजीदगी से लें तो शायद दुनिया थोड़ी बेहतर, थोड़ी नर्म और मोहब्बत भरी हो सकती है। इखलाकी सबक एक, यादें कीमती होती हैं, उन्हें संभाल कर रखें चाहे वो छोटे बेग में हो या दिल के किसी कोने में। दो, दूसरों की तलाश में मदद करना सिर्फ किसी चीज़ को वापस लाने का नाम नहीं, ये इंसानियत का हिस्सा है। तीन, एक छोटी सी कोशिश कभी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कोई भी चीज़ जिसे हम भूल जाते हैं अगर किसी के लिए मानी रखती हो तो हमें इसका एहतराम करना चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर छोटी शय किसी बड़े एहसास और मोहब्बत की नुमाइंदा हो सकती है, बस हमें आंखें खोल कर देखना होगा।
भूला हुआ बेग। ये कहानी एक ऐसे बेग की है जो किसी रोज बायला बैठा गया बस की खिड़की के नीचे एक पार्क की झाड़ी में या किसी रेल स्टेशन के बेंच पर बज़ाहिर वो सिर्फ कपड़ा नम और ज़ेब का टुकड़ा था, मगर उसके अंदर छपी यादें, ख्वाब और इंसानों की जिंदगियों के टुकड़े भी थे। ये बेग किसी एक फर्द का नहीं बल्कि एक छोटी सी कायनात का आईना था, एक ऐसी कायनात जो रोजमर्रा के शोर में खामोशी से गोशे में रहती है और जिसे हम जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करते हैं। बेग का रंग मिटवा हुआ था, कभी शायद गहरा नीला या सुनहरा रहा होगा, मगर धूप और बारिश ने इसके रोशन रंग धीरे धीरे मिटा दिए। कियास किसानों में एक नरम हल्की सी बो थी जो खुशबू से ज्यादा यादों की होती। बसों की गर्द की वो सड़क के खाने की हल्की सी हायनगरी खुशबू और शायद किसी मुसाफिर के पसीने की बेरंग शिद्दत। बेग के अंदर जो चीजें थीं वो बज़ाहिर आम थीं, चंद नोट, एक पुराना मोबाइल, एक जूता का पट्टा, एक फोटो, एक खाली प्लास्टिक की बोतल और एक नोटबुक जिसमें हाथ से लिखा एक खत था। मगर हुआ ने जब उन चीजों को बाहर निकाला तो हर चीज ने अपनी एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो खत बेग के अंदर उसके मालिक की आवाज बनकर रह गया, अंगुश्त बदस्त हाथ लरस कर लिखे गए अल्फाज में घर माथा टेकने की जगह और किसी ने लिखा हुआ वदा था। खत में कहीं छपी तवक्को थी, कहीं उदासी, उबाबा तुम कहाँ हो। ये सादा सी सुतूर थी मगर उन्होंने पढ़ने वाले के दिल को चीर कर रख दिया। खत के आखिर में लिखा था, अगर ये बेग मिल जाए तो इसे पता पहुंचा देना। मगर पता अधूरा था, शायद काबू से बाहर हुए सफर की वजह से नामालूम था, या शायद लिखने वाले के हाथ कांप गए थे। फोटो थी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखें थोड़ी सी बेचैन मगर खुशी की किरण के साथ। फोटो के पीछे किसी ने नाम लिखा था, शाहिद। पुरानी सी तस्वीर थी, शायद ईद की कोई शाम या बरसात के बाद का दिन जब बच्चे छतरियां लेकर बाहर निकलते हैं। फोटो में एक छोटी सी किचन टेबल भी दिखाई देती थी जिस पर चाय की घूंट के बाद एक खिंचा खिंचा कप पड़ा है। इससे आया था कि यह तस्वीर किसी आम मगर मोहब्बत भरे घर की है। मोबाइल ट्रिन ऑन करने पर पता चला कि बैटरी खत्म है, मगर उसके स्क्रीन सेवर पर एक व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन झलक रही थी, मेरे सफर के बारे में फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भेजने वाला नंबर महफूज न था। इस पैगाम में एक ऐसी उम्मीद थी जो किसी गैर यकीनी मुस्तकबिल में भी रोशनी डालता। हिब्न के मालिक ने मुमकिना तौर पर अपने दोस्त को या किसी अजीज को तसल्ली दी थी कि वो महफूज है, मगर फिर वो बेग क्यों भूल गया? इसी सवाल ने बेग का तकदीर बदल दिया। कहानी का रुख बदलने लगा जब बेग को किसी ने उठाया। ये आम सी लड़की थी नाहिद, जो शहर से कुछ दूर के कॉलेज से आई थी। इसने रेल स्टेशन पर बेग देखा और सबसे पहले इसमें पड़ी नोटबुक खोली। जब इसने वो खत पढ़ा तो इसके अंदर एक अजीब किस्म की हमदर्दी जाग उठी। याद ने सोचा कि शायद ये बेग किसी नौजवान का है जो शहर में पहली बार आया था, शायद किसी काम के तलाश में किसी इम्तिहान की तैयारी में। वो बेग उठाकर स्टेशन के इंचार्ज के पास गई, मगर वहां भी इतना कुछ नहीं हो सका। रजिस्टर में नाम लिखने के बाद बेग पनागा में चला गया। पनागा में एक बूढ़ा आदमी था, राम खान, जो 46 बरस से स्टेशन के करीब बैठा रहता था और राहगीरों के बेग संभाला करता था। राम खान ने बेग खोला और अंदर मौजूद चीजों को देखा। इसके चेहरे पर किसी कदीम जमाने की यादें अलिफाबेर। राम खान ने कहा, बेग सरगर्दा होता है, लोग जाते हैं और चीजें रह जाती हैं, मगर चीजें भी इंसानों की कहानियां लेकर रह जाती हैं। इसी जुमले ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर इत्तेफाकना एक छोटा लड़का नासिर, जो साए की मानिंद स्टेशन के आसपास छोटे छोटे नवाबों में भागता था, ने फिर इसी बेग में से एक नोट निकाला। नोट के अंदर एक 50 रुपए का नोट लिपटा हुआ था और उसके साथ एक चॉकलेट का रैप था। नासिर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई, वो चॉकलेट इसके दिन को रोशन कर देगी। मगर जब इसने बूढ़े राम खान की जानिब देखा तो इसने समझ लिया कि ये चीजें किसी के लिए बहुत कीमती हैं। इसने चॉकलेट वापस बेग में रखी और बेग को बहिफाजत बंद कुर्दाहा है से बेग की कहानी ने एक नई मुहिम इख्तियार कर ली। हर शख्स जो इस बेग के करीब आया, इसने इसमें से अपनी एक दुनिया निकाल ली, चाहे वो दुनिया खुशी की हो या गम की। एक दुकानदार ने अंदर पड़ी एक खाली बोतल को पानी भरकर एक भिखारी को दे दा। टैक्सी ड्राइवर ने बेग में से एक जूते के पट्टे को देखकर मुस्कुरा दिया और अपने बेटे के जूते को ठीक करने के लिए उठा ला। अलिफाक टीचर ने नोटबुक के सफ़हात में छुपे हुए खूबसूरत शेर को पढ़कर अपनी क्लासेस में बच्चों को सके आयलकन। सबसे अहम मोड़ तब आया जब किसी ने युग के अंदर मौजूद इस खत के आखिरी एक जुमले पर गौर किया, अगर ये बेग मिल जाए तो इसे पहुंचा देना। वो खाली जगह
तो नाम अपता छोड़ गई थी एक तरह का सवाल बन गई। इस खाली जगह ने बेग को लफ्जी तौर पर बेविला हवा बना दिया। कोई नाम था मगर वो नाम अपता कहाँ था। इस राज को हल करने की कोशिश में कई लोगों ने अपने अपने अंदाज से हिस्सा डाला। एक रोज बेग को एक मकामी अखबार के दफ्तर ले जाया गया। अखबार के चीफ एडिटर जनाब आरिफ ने इसे एक इंसानी दिलचस्पी की खबर समझा और अगले रोज के एडिशन में एक छोटी सी खबर छाप दी। स्टेशन पर मिला एक भूला हुआ बेग, मालिक तलाश कीजिए। इस खबर ने शहर के चंद गोशों को हरकत में ला दिया। कुछ दिनों के बाद एक औरत स्टाकिंग करती हुई अखबार लेकर आई। इसने बेग के मालिक की शनाख्त बता दी। औरत ने बताया, ये मेरा बेटा शाहिद है। वो कुछ हफ्ते पहले शहरों की मुलाजमत की तलाश में गया। इसकी आवाज में टूटने वाली हिचकी थी। शाहिद का नाम बेग की मेहर बन गया, मगर हकीकत ये थी कि शाहिद खुद शहर के किसी कोने में नहीं। वो एक ऐसे गांव में वापस आया था जहां इसकी आदतों का पता न था। इसने एक छोटी दुकान में काम शुरू कर दिया था, अपने आप को किसी और नाम से मुतारफ करवा दिया था और अपनी जिंदगी की कुछ तकलीफें छपाई थीं। इसने बेग भूलने का वाकया भी महसूस न किया। शायद इसने जिंदगी के शोर में अपनी चीजें और यादें खो दी थीं। जब उसकी माँ ने अखबार देखा और कहा कि बेग मिला है तो इसका दिल उठा, मगर वो जानती थी कि बात सिर्फ बेग मिलने तक महदूद नहीं होगी। बेग के अंदर की यादें, तस्वीर और वो खत जो इसने कभी लिखा था, सब वापस आएंगे और शायद इसकी बेटियों औलादा आवालिद के सामने इसकी असल हकीकत खिल जाएगी। शाहिद की वापसी हकीकत में सादा ना थी। इसने बेग वापस लेने के लिए कई दिन गुजारे। जब वो आए तो उसकी आंखों में ना तो खुशी पूरी थी और ना ही बेनियाजी। इसकी आंखों में एक कंफ्यूजन थी। वो शख्स जो कभी तस्वीर में मुस्कुरा रहा था अभी उदास सा लगा। इसके हाथ काम रहे थे जब इसने बेग खोला। फोटो, खत और वो पुराना मोबाइल सब उसके सामने थे। वो एक एक चीज को देखता रहा और फिर रोता रहा। इसकी माँ ने इसे गले लगा लिया और शहर की हलचल में कहीं एक दरमियानी सी खुशी की लहर का गई। लेकिन यहाँ इख्तिताम नहीं होता। बेग ने अपनी असल कदर इस दिन दिखाई जब शाहिद उनके सामने खिले दिल से अपना माजी सुनाया। इसने बताया कि इसने मेहनत की थी, कभी दिवालिया पाया, कभी उम्मीदों के सहारे रोजी कमाई और कभी अपने अंदर छपी मायूसियों से लड़ा। इसने कहा कि वो बेग इसकी हिफाजत था, इसमें इसकी नींद, इसके कुछ कपड़े और एक छोटा सा ख्वाब था। इसने भी तस्लीम किया कि जब वो बेग भूल गया तो महसूस हुआ कि वो अपना एक हिस्सा खो बैठा है। और जब लोगों ने इसका साथ दिया, दुकानदार ने मजदूरी के मौके बताए, रान टैक्सी ड्राइवर ने काम के हवाले से मदद की और सहाफ़ी ने बेग की खबर शाये की, तो शाहिद ने समझा कि इंसानियत के इस जाल ने इसे वापस अपने कदमों पर खड़ा कुर्दा। कहानी हमें बहुत से सबक देती है। सबसे पहला सबक ये है, भूल जाना महज एक फेल नहीं बल्कि एक सूरत हाल होती है जो लोगों को जोड़ देती है। बेग का भूला होना लोगों के दरमियान रिश्तों का सबब बना। अजनबी एक दूसरे के करीब आए, मदद के हाथ बढ़ाए गए और सी छोटी छोटी कहानियां आपस में जड़ गईं। दूसरी बात ये कि चीजें चाहे वो कितनी ही आम क्यों ना हो, हमारी पहचान और यादों का हिस्सा होती है। एक खाली बोतल, एक 50 रुपए का नोट या एक पुराना जूता किसी शख्स के लिए उम्मीद या दर्द की अलामत बन सकता है। तीसरा और अहम सबक ये कि हर चीज की कदर इस वक्त मालूम होती है जब वो खो जाए। बेग के मालिक ने जब बेग खोया तो इसने अपनी जिंदगी के YouTube के लिए बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बनाई। बेग मिला तो इसे एहसास हुआ कि वो चीजें परेशानी का हल, बच्चों की अखलाकी कहानी के बारे में अलामत के आखिर में 10 मिनट की वीडियो बनाई। शाहिद ने एक नई शुरुआत की थी। सीटिंग्स, मुनासिब मीडिया इस्तेमाल करें। इसने अपने नुकसान को एक सबक बैकग्राउंड म्यूजिक को खुशगवार रखें। मरकज में जुबान उर्दू होनी चाहिए। खास तौर पर कोई सब टाइटल शामिल ना करें। जो जिंदगी की दौड़ रावी के लिए मर्दाना ट्रांस अटलांटिक आवाज इस्तेमाल करें। वाटर मार्क टेक्स्ट के तौर पर एमडी कार्टून्स इस्तेमाल करें। आई स्टॉक इस्तेमाल ना करें। YouTube ऑडियो लाइब्रेरी इस्तेमाल करें और रहनुमा बने थे। भूला हुआ बेग आखिरकार सिर्फ मुनासिब मीडिया इस्तेमाल करें। वो लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को खुशगवार रखें। जो ये बताती है जुबान उर्दू होनी चाहिए। कितनी मजबूत कोई सब टाइटल शामिल ना करें। मेहरबानियां रावी के लिए कोई भी ट्रांस अटलांटिक आवाज इस्तेमाल करें। वाटरमार्क टेक्स्ट के तौर पर एमडी कार्टून्स इस्तेमाल करें और जब कभी आई स्टॉक इस्तेमाल ना करें। सिर्फ YouTube ऑडियो लाइब्रेरी इस्तेमाल करें। देखा है तो शहर के लोग मुस्कुरा करते हैं। हाँ, बेग को कभी कभी लोग भूल जाते हैं मगर इंसानियत इसे वापस ला देते हैं।